Hello everyone, this is Sukhdev sir. Welcomes you once again in the web classes. I hope you all are doing well at home and watching the videos regularly. Students, from the previous video, we have started English grammar and the topic was parts of speech. In that topic, we have learned the brief explanation, brief details about all the parts, and from today we shall continue the detailed explanation of all the parts of speech one by one. And today we shall start with the nouns. That was first part of parts of speech. Let's start. Students, this is the first part of parts of speech. There are 8 parts of speech and the first one is noun. We have learned the meaning and what does noun mean in the previous video. We shall restart the meaning and have other details about noun from this video. Let's start. First one is noun. All that you can see, all that you can see, feel or think is noun. You can feel from the heart, you can think from the mind, okay, you can see from the eyes. What you can see, feel, think, these all things can be called noun. For example, Ricky, you can see Ricky is a name of a person, so you can see the person. Paris, name of the city, you can see the city. Paper, paper is a material, you can see the material. Sadness, it is a feeling, you can feel it. That is why these are the examples of noun. You can see, what you can see? A taxi, a cook, a banana, a mouse, a mango, a girl, etc. You can feel, what you can feel? You can feel physics, life, fortune, etc. Common definition of noun which we have already understood in the previous video. A noun is a naming word. What is the process of noun? Noun is a naming word. If you find any kind of word, then you can name it. After naming the word, it is a noun. Okay students, तो आप लोग समझ गए होंगे कि noun का meaning क्या होता है. Let's see the kinds of noun. How many types, how many kinds of nouns? First one is common noun, proper noun, collective noun, material noun, and the fifth one is abstract noun. And we shall understand all these 5 kinds of noun in this particular video. Let's start with the common noun. First of all, I shall give a lot of examples which will help you to understand what the noun is. Let's say, how to clarify. Example number 1, suppose you have a goat. Suppose you have a goat which is a common animal. You know that very well. You have a goat, बकरी जिसको बोलते हैं, which is a common animal. You can see here. A goat is a common noun. देखो nouns को clarify कैसे करते हैं, पहले मैं आपको ये बताता हूँ, उसके बाद में हम 1 by 1 करके सारे nouns की details लेंगे. A goat is a common noun. बराबर. goat, बहुत सारी goats हो सकती है, सब commonly एक name दिया गया है, that is why it is common noun. If you name your goat as Sony, it will be a proper noun for you. There is a goat which is a common animal. If you name that goat, whatever the name is, Sony, it will be proper noun. गोट है आपकी, बाकी जितनी भी गोट्स हैं सबके साथ मिल जाए, कलेक्ट ग्रुप के अंदर इकट्ठा हो जाए, सब लोग साथ में हो जाए, तो क्या बोलेंगे उसको? कलेक्टिव नाउन. इफ़ यू कट द गोट, सॉरी फॉर एन एग्जांपल, समझाने के लिए बता रहा हूँ. इफ़ यू कट द गोट, मटन विल बी अ मटीरियल नाउन. आई थिंक दैट मस्ट बी अनदर एग्जाम्पल. चलो कोई बात नहीं, ले लिया तो आप समझ दो इसको. इफ़ यू कट द गोट, मटन विल बी अ मटीरियल नाउन. मतलब कुछ लोग होते हैं लाइक बकरी ईद पे बकरी कटती है, आप लोगों को पता होगा. तो जो मटन होता है तो किस में से बना हुआ है? वो गोट में से ही बना है. दैट कैन बी कॉल्ड मटीरियल नाउन. एज यू कुक मटन एंड फाइंड डेलिकेसी इन टेस्ट, it is a abstract noun.
मतलब आप कुछ भी कोई भी बनाते हो, जैसे लाइक दूध में से दही बना सकते हो, मतलब फ्रॉम द मिल्क यू कैन मेक द कर्ड, दही बना सकते हो, और उसमें से अगर आपको डेलिकेसी फील होती है, अच्छा टेस्ट आता है, दैट कैन बी कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये जितने भी नाम बताए मैंने, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, ये वाला थोड़ा मैंने बाय मिस्टेक ले लिया देखी बिना, तो चलिए सेकंड वाला देखते हैं। अ मैन इज़ ए कॉमन नाउन। मैन होते हैं, आप कॉमनली देखते हो, हर जगह पर मैन दिखाई दे सकते हैं, बराबर। इफ़ हिज नेम इज़ पीटर इट विल बी ए प्रॉपर नाउन एज इट इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर मैन। क्लियर है? अगर आपने कॉमन मैन को नेम दे दिया है, कॉमन मैन को नेम दे दिया, पीटर नेम दे दिया, या फिर सुखदेव नाम दे दिया, समझ सकते हो, सुखदेव सर बोल सकते हो, तो प्रॉपर नेम हुआ। इफ़ पीटर बीइंग ए स्टूडेंट, तो आप सुखदेव सर नहीं बोल सकते, आप जो पढ़ रहे हो, जो सुन रहे हो, आपका खुद का नाम दे दो। इफ़ पीटर बीइंग एन स्टूडेंट एंटर्स इनटू अ क्लास इट विल बी ए कलेक्टिव नाउन। अगर मैन जाएगा तो क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। इफ़ पीटर गोज थ्रू अ फॉरेस्ट एंड अ टाइगर किल्स हिम, बाप रे, तो उससे भी डेंजरस एग्जाम्पल है। इफ़ पीटर गोज थ्रू अ फॉरेस्ट एंड अ टाइगर किल्स हिम द फ्लैश ऑफ हिज बॉडी विल बी ए मटीरियल नाउन। मान लो ना मैं हूँ ना तुम लोगों को, वो दूसरा ही हो सकता है। मान लो कि किसी का भी नेम दिया और वो फॉरेस्ट में जाता है, फॉर वॉन्डरिंग समझ लो, घूमने फिरने के लिए निकला हो, बाई चांस किसी के साथ हो नहीं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो गया तो टाइगर ने उसको किल कर दिया, टाइगर, लाइन, जो भी, लेपर्ड, अगर उसने उसको किल कर दिया तो किल करने के बाद क्या करेगा? वो पूजा पाठ तो करेगा नहीं, उसकी सीधी सी बात है, उसकी बॉडी के कट पीस जितने हो सकते हैं करेगा, बराबर। और उसको जो बॉडी का फ्लैश मतलब मांस होता है बॉडी के अंदर, वो उसके लिए क्या कहलाएगा? मटीरियल कहलाएगा, क्योंकि जो भी टाइगर किल करने वाला उसको छोड़ने वाला नहीं, वो खा जाएगा। इफ़ यू फील सोरो एट हिज डेथ इट विल बी एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कि भाई बहुत अच्छा आदमी था यार, बट लेकिन क्या करे, क्या करने के लिए फॉरेस्ट में गया था, हमने तो मना किया था मत जा, पर चला गया, तो अब सीधा फॉरेस्ट में गया था, अब टाइगर के पेट में गया, तो उसके मरने का अपने को थोड़ा गम तो होगा ना, सोरो, दुख होगा, तो उसको हम बोलते हैं, वो फील अगर इंटेंस होता है दैट कैन बी कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आप तो अब समझ ही गए होंगे सारे के सारे टाइप्स, क्या करूँ, समझाऊँ कि नहीं? चलिए फिर से एक बार बता देता हूँ, तो ज़्यादा बेटर आप समझ सकते हो। ये एग्जांपल्स मैंने क्लैरिफाई इसलिए करने को दिए कि 2 एग्जांपल दिए हैं एक ही पर्सन को, हाउ टू इंक्लूड इन 5 टाइप्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट काइंड्स ऑफ नाउन इन डिटेल। फर्स्ट वाला है कॉमन नाउन। अ कॉमन नाउन इज द नेमिंग पर्सन। मैन बोल दिया मतलब सारे मैन आ गए, वुमन बोल दिया सारी वुमन्स आ गए, बॉयज़ गर्ल्स किसी को भी नेम दे दो, हो गए सारे मैन। अब बता प्लेस, विलेज बोल दिया मतलब सारे विलेज आ गए, सिटी मतलब सारी सिटीज़, कंट्री मतलब सारी कंट्रीज। प्रॉपरली अगर किसी प्लेस को अगर आप नेम दे देते हो तो सारे प्लेस जो उसके जैसे हैं, सिमिलर टू दैट वन, सारे प्लेसेस को हम क्या बोलेंगे? विलेज दिया तो विलेज, सिटी दिया तो सिटी। थिंग में भी कुछ भी हो सकता है, लाइक पेन, तो जितनी भी पेन होगी सबका नाम पेन हो जाएगा, मटेरियल्स में आ सकते हो सारे, बराबर। जैसे कैरोल इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, कैरोल, बराबर, लड़की का नेम है। मोहन इज़ अ गुड बॉय। मुंबई इज़ अ बिग सिटी। नेपाल इज़ अ नेबरिंग कंट्री, नेपाल को भी बोल सकते हैं, चाइना तो बहुत उस टाइप का है, जाने दो। नेपाल इज़ आर नेबरिंग कंट्री, देखो सबको नाम दे दिया है मैंने, बॉय, गर्ल, सिटी, कंट्री, बराबर, सभी का कॉमन नेम दिया हुआ है। इन द अबोव सेंटेंस अंडरलाइन वर्ड्स आर कॉमन नाउन्स। देखो गर्ल मीन सारी गर्ल्स आ गई, चाहे कैरोल हो कि पैरोल हो, नारोल हो कि कारोल हो, बराबर, जो भी नाम हो गर्ल का वो। बॉय मोहन हो कि सोहन हो, कोई भी नाम आ सकता है। सिटी मुंबई, अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा, सूरत, वॉट एवर द सिटी इज़ इट इंक्लूड्स इन द सिटी। नेपाल कंट्री अगर बोला हो तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कोई भी नेम आ सकता है। तो अगर कॉमनली अगर हम किसी को एक नेम दे देते हैं दैट कैन बी कॉल्ड कॉमन नाउन, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रॉपर नाउन।
Proper noun is the naming word of a particular person, animal, place, thing, etc. Particular person का नेम क्या है? सिटी, सिटी का नेम क्या है? कंट्री, कंट्री का नेम क्या है? थिंग, थिंग का नेम क्या है? पेन, पेन आपने बोला थिंग मटेरियल है, तो पेन कौन सी वाली पेन? तो आप कोई भी नाम दे सकते हो पेन में, जैसे कोई भी नाम दे दो, सेलो पेन, बराबर। तो चलो देखते हैं। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया। सिटी था, उसको आपने दिल्ली नाम दे दिया, बराबर। कृष्णा हैड टू वर्क हार्ड। कृष्णा गर्ल बॉय कोई भी हो सकता है, उसका नेम हमने कृष्णा दे दिया। नेपोलियन वॉज अ ग्रेट कमांडर। किसी कमांडर, कमांडर बहुत सारे होते हैं, कॉमनली हमने कमांडर एक नेम दे दिया, पर कमांडर में से एक का नाम क्या? नेपोलियन। हैमलेट इज़ अ फेमस प्ले। तो कोई भी प्ले होता है, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, सॉकर, जो भी बोलते हो, बराबर। तो सारे प्ले का अगर नाम दे दिया जाए तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, और सभी का कॉमन एक नेम होगा तो उसको हम बोलेंगे कॉमन नाउन। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। क्लियर है स्टूडेंट्स? एकदम पक्का, 100%। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। प्रॉपर और कॉमन तो हो गया, अब आएगा कलेक्टिव नाउन। चलो कलेक्टिव नाउन देख लेते हैं। कलेक्टिव नाउन, अ कलेक्टिव नाउन इज द नेमिंग वर्ड ऑफ अ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, थिंग्स एट्सेट्रा। अ क्राउड हैज़ क्रिएटेड ऑल दीज प्रॉब्लम्स। भीड़, ग्रुप हुआ ना, क्राउड बोल सकते हो। अगर अपना मतलब आदमी लोग इन द सेंस ह्यूमंस का अगर ग्रुप होता है तो उसको क्राउड बोलते हैं। एनिमल्स का होता है तो एनिमल्स का डिपेंड करता है कौन से टाइप के एनिमल्स है। लाइक एलिफेंट्स होंगे तो हर्ड बोला जाएगा, मॉस्किटोज होंगे तो स्वॉर्म बोला जाएगा, बराबर। तो छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो भी होते हैं उनके अलग अलग ग्रुप्स होते हैं और उन ग्रुप का एक पर्टिकुलर नेम होता है। द ज्यूरी हैज़ डिसाइडेड टू सेंड हिम टू द जेल। ज्यूरी, ज्यूरी आपने वर्ड सुना ही होगा, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट। अ फ्लॉक ऑफ शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। देखो हाथी लोग होते हैं उनको हर्ड ग्रुप का नेम होते हैं। फ्लॉक ऑफ शिप्स मतलब जो भेड़िए बकरी होते हैं, भेड़ बकरे, बकरी तो अलग, भेड़ को फ्लॉक ऑफ शिप्स। बंच ऑफ कीज हैज़ बीन लॉस्ट, चाबियों का गुच्छा, बराबर। तो ऑल दीज आर अ ग्रुप नेम्स, दैट इज़ वाई वी हैव कॉल्ड देम कलेक्टिव नाउन। Some more examples देख लो। A committee of members, flock of sheep, herd of cattle, swarm of insect, a bevy of girls, galaxy of stars, gang of bandits, class of students, fleet of ships and archipelago of islands. These were the names। ये सारे के सारे जो है पर्टिकुलर ग्रुप्स के नेम हैं, बराबर। किसी भी ग्रुप को एक नेम दे दो, नेमिंग वर्ड ऑफ अ कलेक्शन। कोई भी कलेक्शन हो या ग्रुप हो उसका अगर आप नाम दे देते हो, दैट कैन बी कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। मटीरियल नाउन, कौन सा? मटीरियल नाउन। अ मटीरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटीरियल एग्जिस्टिंग इन द नेचर। नेचर में जो भी मटेरियल एग्जिस्ट करता है, आप सोच रहे हो सर नेचर में मटेरियल एग्जिस्ट करता है ना यार। फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट में से आप फर्नीचर बनाते हो, चेयर्स, बराबर। बहुत सारे फर्नीचर बना सकते हो। मैंने चेयर का नाम इसलिए लिया क्योंकि वही नाम आया मेरे को। द ऑर्नामेंट इज मेड ऑफ गोल्ड। गोल्ड मटेरियल है, गोल्ड के गहने बनते हैं, ऑर्नामेंट्स बनते हैं। कॉटन इज गुड फॉर स्किन, बराबर। आई लाइक राइस एंड पर्ल्स। ये सारी जो नेचर में से अवेलेबल है, नेचर में एग्जिस्ट करती है। टेक दिस मिल्क बिफोर यू गो टू बेड। मिल्क नेचर प्रोवाइडेड। वी कैन नॉट लिव विदाउट में से कर्ड बना सकते हो, बराबर। बटर मिल्क बन सकता है कर्ड में से, घी बन सकता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिनमें से दूसरी चीज़ें बनाई जा सकती है। ऑल द थिंग्स विच आर प्रोवाइडेड बाय द नेचर एंड ऑल अदर थिंग्स विच आर मेड फ्रॉम द थिंग्स प्रोवाइडेड बाय नेचर। बहुत कन्फ्यूजन वाला सिंपल भाषा में, नेचर ने जो हमको दिया है वो भी मटेरियल है और उनमें से हम जो बनाते हैं वो भी मटेरियल है। तो ये सब कुछ मटेरियल है प्रोवाइडेड बाय नेचर, एग्जिस्टेड इन द नेचर। ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी, action, state,
thinking, feeling, etc. A noun that cannot be touched in an abstract noun. जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, वी कैन जस्ट फील इट, फील कर सकते हैं. क्वालिटी, ब्रेवरी, काइंडनेस, गुडनेस, ऑनेस्टी. एक्शन, लाफ्टर, हैट्रेड, बिहेवियर, थेफ्ट. स्टेट, ब्रदरहुड, बॉयहुड. स्टेट का मतलब बीइंग, लाइक बीइंग ह्यूमन. ब्रदरहुड, बॉयहुड, स्लीप, यूथ, स्लेवरी. स्लेवरी का मीनिंग पता है, गुलामी, फ्रीडम का अपोजिट. फीलिंग, पेन, हैप्पीनेस, सैडनेस, एट्सेट्रा. थिंकिंग, साइकोलॉजी, लाइफ, डेथ, एट्सेट्रा. तो जिसको हम टच नहीं कर सकते लेकिन जिसको फील किया जा सकता है, लाइक स्माइल, लव. लव सुन के अच्छा लगा होगा, आज की जनरेशन को खास करके अच्छा लगता है. लव, हैट्रेड, हैप्पीनेस, वॉट एवर द फीलिंग इज, दैट कैन बी कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो इट इज अप टू द टाइप्स ऑफ और काइंड्स ऑफ नाउन. दैट्स ऑल अबाउट नाउन्स. तो आप लोग समझ गए होंगे. Understood the types or kinds of noun and the definition of noun as well. ठीक है, तो चलिए कैरी ऑन करते हैं. विच वॉज द सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच, दैट वॉज प्रोनाउन. प्रो, तो प्रो प्लेयर की बात नहीं कर रहा हूँ. प्रोनाउन मीन्स अ नाउन, अ वर्ड दैट फेवर्स द नाउन. अ वर्ड दैट फेवर्स द नाउन. नाउन को फेवर करता है, मतलब नाउन की जो जगह ले सकता है, नाउन का जो प्लेस ले सकता है, दैट कैन बी कॉल्ड प्रोनाउन. सर स्लाइड में दिख नहीं रहा है, तो चलो स्लाइड दिखा के बताता हूँ, देख लो. सॉरी, स्लाइड से पहले आपको मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, वो आपको करना रहेगा. देखो यहाँ पर जो है एक्सरसाइज दी हुई है, लिखा है फाइंड आउट नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस एंड टेल देयर काइंड्स ऑल्सो. क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये जितने भी 17 दिए हुए हैं, इन सभी में से आपको क्या करना है, नाउन को आइडेंटिफाई करना है. काफ़ी इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस है. कुछ लोगों को क्या, आई थिंक ऑलमोस्ट लोगों को फर्स्ट टाइम देख के शायद समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसमें कुछ प्रोवर्ब्स भी है. प्रोवर्ब्स मतलब जैसे लिखा है अ बर्न्ट चाइल्ड ड्रेड्स द फायर. आप सोच रहे होंगे जला हुआ बच्चा, बर्न्ट चाइल्ड. अ बर्न्ट चाइल्ड ड्रेड्स द फायर, इसका मतलब ये होता है दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है. बोलते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, मतलब जिसने एक बार ठोकर खा ली बाद में बहुत संभल कर चलता है. तो यहाँ पर जो है अ बर्न्ट चाइल्ड, विच चाइल्ड, अ बर्न्ट चाइल्ड. तो ये कौन सा नाउन हुआ, ये मैं नहीं बताऊंगा. दिस इज एन एक्सरसाइज, ये आपको करनी है बराबर. 17 है, इसको अच्छा मिलेगा विथ एक्सप्लेनेशन. ठीक है, तो मेरा काम भी थोड़ा आसान हो जाएगा, आप लोग आराम से कर सकते हो. नो नीड टू वरी अबाउट डैट. ठीक है, ये अच्छे से करना ताकि आपका तो जितना मैं आपको समझा रहा हूँ वो मुझे और आपके लिए फ्रूटफुल हो, मतलब वर्थलेस ना जाए, टाइम ख़राब ना हो इसके लिए. चलो आगे आपका प्रो. देखो प्रोनाउन, प्रो प्लस नाउन. प्रो मीन्स फेवरिंग नाउन. देखो फॉर नेमिंग वर्ड, जैसे ही है, पीटर. पीटर अगर नाउन है, पीटर अगर नाउन है तो पीटर की जगह पर मैं अगर ही लिख दूं तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रोनाउन बोल सकते हैं. देखो डेफिनेशन लिखिए छोटी सी. अ वर्ड, दिख रहा है, अ वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर अ नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन. वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर नाउन दैट कैन बी कॉल्ड प्रोनाउन. इसकी डेफिनेशन बता दी मैंने आपको. अब काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, तो प्रोनाउंस के कितने टाइप्स है वो हमको देखने पड़ेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आज आपको सारे नहीं बताऊंगा. एक काम करता हूँ, खाली स्टार्टिंग का जो पर्सनल प्रोनाउन है वो बता देता हूँ. ठीक है स्टूडेंट्स, या फिर इतना ही रहने दूँ? देखो टाइम कितना है, वी हैव इनफ टाइम. तो चलो मैं आपको फिर भी एक तो बता देता हूँ, पर्सनल प्रोनाउन बता देता हूँ. ठीक है, चलो ये वाला देख लेते हैं, पर्सनल प्रोनाउन, फिर ज़्यादा हो जाएगा. देखो टोटल टाइप्स है 10. एक काम करता हूँ, ये 10 के नेम बता देता हूँ पहले. फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड वन इज रिलेटिव प्रोनाउन, थर्ड वन इज इंटरोगेटिव प्रोनाउन,
फोर्थ वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फिफ्थ वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, सिक्स्थ वन इज इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इम्फेटिव। तो चलो पर्सनल प्रोनाउन के बारे में आपको बता देता हूँ, ध्यान से देख लो। तो ये आपने सुना ही होगा, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं आनी चाहिए। देखो इसमें फर्स्ट पर्सन, नंबर, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पॉजेसिव, रिफ्लेक्सिव, बहुत सारे हैं। तो प्रोनाउन दैट इंडिकेट्स पर्सन इज कॉल्ड अ पर्सनल नाउन। पर्सन को जो इंडिकेट करता है, पर्सन को जो इंडिकेट करता है उसको हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। लाइक बॉय होगा तो ही, गर्ल होगा तो सी, और नॉन लिविंग थिंग होगी तो उसका हम बाद में देखेंगे, पहले पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में देख लेते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है? फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है हम लोग, मैं, हम, आप लोग नहीं। आप लोग मतलब सामने वाला, सुनने वाला हुआ ना। तो स्पीकर जो होते हैं, लाइक मैं हूँ तो मैं बोल रहा हूँ, हम हैं तो हम बोल रहे हैं। तो सब्जेक्ट में देखो फर्स्ट पर्सन में कौन आया? सिंगुलर, आई एंड वी, ये सिंगुलर फॉर्म है इसका। सिंगुलर में देखो बाद में बताता हूँ, मतलब फर्स्ट पर्सन में कौन आया? आई एंड वी। सेकंड पर्सन में कौन है? यू एंड यू, आप लोग। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, मतलब कोई और, ना मैं ना आप, कोई और, उसको बोलते हैं थर्ड पर्सन। क्लियर है? अब ऑब्जेक्ट में देखो, लाइक ये प्रोनाउन की बात कर रहा हूँ, पर्सनल प्रोनाउन। तो उसमें आपने ऐसा बोल सकते हो मैं हूँ, तो मेरा, मैं के साथ क्या क्या कनेक्शन हो सकते हैं? मैं, मेरा, मैं खुद, मेरा खुद का, अपने बोलते हैं ना, आई, मी, माई, माई सेल्फ, आई, मी, माई, माई सेल्फ। तो इन सब का जो यूज़ है आप खुद करके देखिए किस तरीके से इसका यूज किया जा सकता है। तो इसको मैं ज़्यादा डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं, इसको प्रैक्टिकली यूज़ करके समझोगे तो आपको जल्दी और ज़्यादा हम खुद, बराबर बहुत सारी चीज़ें होती है ना, लाइक वी, अवर्स, अवर, बराबर, आवर सेल्फ। तो जितने भी है ये सारे पर्सन से रिलेटेड है। लाइक मैं हूँ तो मैं पर्सन, वी हम पर्सन, पर्सन्स, थर्ड पार्टी है तो वो भी पर्सन्स ही हुए। तो इन सभी को अपने क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस। आपको ये पूरा टेबल दिया हुआ है, इसको अच्छे से समझना है, हो सकता है तो लिखना भी है, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स enough for today and that's it. We shall meet in the next video. Till then जितना काम आपको बताया है उतना काम आपको करना है। See you in the next video. Till then take very good care of yourself and stay home, stay safe.